Good morning, students. This is Pawan Srivastav, and today I am going to discuss with you Part 5 Report Writing. This is a compulsion, my dear bachcho. I am making you understand about 5 part of report writing on campaign with the help of this paper. So just try to get what I just want to make you understand and listen me very carefully with the help of this criteria. Okay, start writing. Report writing, my dear bachcho, report writing on a campaign. The final part I always make you understand that at the mid of the paper you will write a report. You will write a report in all capital letters, just as here. You can notice that. Thereafter, there is your choice that you can leave one line after writing a report in all capital letters. Thereafter, you will write the title of the campaign, title of the report writing. When you go writing the title and topic of this report writing, you will write your title in bold form. Bold form means you can write double line, जिससे जो थोड़ा सा जो आप टॉपिक लिखें that will appear bold, थोड़ा सा मतलब डार्क लगे वो. Thereafter you will leave one line, just as I left this line, and in this line you will write only this name of the place, just as I have written here, New Delhi. In the next line you will write date and reported by, with the same criteria I made you understand in the last videos. Thereafter, my dear बच्चों, उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक लाइन छोड़नी है आपको, just as I left here a line. From the next line you will start writing your campaign. Watch very carefully, because this is my compulsion to write like this. Blueprint. In the first paragraph, what you will write? What happened, when, organizers, and purpose and awareness. It means in this paragraph you all will write with the help of this blueprint. Okay, so what is the paragraph? Let's discuss. The topic of the campaign is a campaign on say no to polythene bags. जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको आपको मना करना है, मतलब आप पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करेंगे. ये आपको जो है एक कैंपेन चलाना है, आप दूसरों को भी समझाएंगे बात. और पहले यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा? व्हाट हैपेंड. इट मीन्स व्हाट इज द इंसिडेंट. व्हेन, ये इंसिडेंट कब हुई. ऑर्गेनाइजर्स कौन थे और पर्पस क्या था इसका. सो स्टार्ट पैराग्राफ फ्रॉम हियर. फर्स्ट पैराग्राफ, एक कैंपेन ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स. कुछ नहीं करना है माय डियर बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही लिखते रहना है. कोई और कैंपेन आएगी तो भी आप ऐसे स्टार्ट करोगे. ए कैंपेन ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स was conducted by Dwarika Welfare Association in Ashok Vihar. Organizer. The main purpose of this campaign, it means कि जो कैंपेन चलाई गई है, इस कैंपेन का जो मेन पर्पस है was to create awareness. वो अवेयरनेस को क्रिएट करना है, जागरूकता को बढ़ाना है among the people, सभी लोगों में, about the harmful effect of the polythene bag on them, कि जो
पॉलीथीन बैग है उनके हार्मफुल इफेक्ट यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले जो प्रभाव हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो, दिस इज द प्योरली जस्ट डेफिनेशन अबाउट द टाइटल। इन द सेकेंड पैराग्राफ, watch this video again to understand. In this second paragraph, what you will do? This is second paragraph, my dear bachcho. In the second paragraph, I just try to zoom something like that. Yes, I can just see my picture here. Okay. In the second paragraph, how the event happened. जो घटना थी वो कैसे हुई, जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन कौन थे, एंड अदर्स जो दूसरे भी थे वो, और डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज। देखो, इट इज रिटन हियर डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज, सो यू कैन जस्ट सी हियर वेरी केयरफुली। फर्स्ट यू विल राइट in your notebook and then watch this video. In the campaign, ladies, gents and students participated with banners. पार्टिसिपेट किया उन्होंने किसके साथ? विद बैनर्स, प्ले कार्ड्स एंड स्लोगन। बैनर्स कहते हैं भाई जो बैनर बने होते हैं जिन पे कुछ लिख देते हैं। प्ले कार्ड्स कहते हैं जो गत्ते पर जो गत्ता वगैरह होता है उस पर जो है एक इस तरह का ना, माय डियर बच्चों, ये बोर्ड बना दिया जाता है और जो है लोग इस बोर्ड को पकड़ते हैं और इस बोर्ड पर जो है यहाँ पर कुछ लिखा होता है और वे ऊपर को उठाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक पिक्चर बनाकर दिखाऊं तो ऐसे प्ले कार्ड जो है मतलब उठाकर दिखाते हैं। ये हो गया प्ले कार्ड्स आपका। स्लोगन क्या होता है? स्लोगन एक तरह की जो है लाइन होती है जो बोलते रहते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो हम ऐसे बोलते चलेंगे। अगर हम पॉलीथीन पर ही कहना शुरू कर दें तो एक डायलॉग सा बना लिया जाता है जिसे जो है एक तो रिपीट, एक तो थोड़ा बोलता है, बाकी के उसे पूरा करते हैं। ये होते हैं स्लोगन। ओके, चलिए। दे मेड द पब्लिक अंडरस्टैंड दैट, उन्होंने पब्लिक को समझाया, दैट पॉलीथीन वुड बी हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ, ये पॉलीथीन तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। दीज पॉलीथीन बैग्स बिकेम द कॉज ऑफ मैनी डिसीज, पॉलीथीन के ये बैग बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेंगे। पॉलीथीन इवन चॉक्ड एंड डिस्टर्ब्ड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर पॉलीथीन को धरती के अंदर भी दबा दिया जाएगा तो वे क्या करते हैं? वो डिस्टर्ब करते हैं और चोक्ड, बंद कर देते हैं किसको? फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को। किसकी उपजाऊपन भाई? मिट्टी की। मिट्टी के उपजाऊपन को बर्बाद कर देते हैं और डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि उसे मतलब परेशान कर देता है और फिर वो जो है उपजाऊ नहीं रहती है। इट कॉज्ड एनिमल्स डेथ, एनिमल्स के डेथ का भी कारण होती है ये पॉलीथीन। आप सभी ने सुना होगा भाई, नेचुरल सी बात है। आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, नेचुरल सी बात है ये। समटाइम्स सम एनिमल्स अवे, क्या कह सकते हैं आप, जो आवारा होते हैं, जो आवारा एनिमल्स होते हैं वो पन्नी वगैरह में कोई चीज़ पड़ी हो तो उसको खा लेते हैं और फिर जो है उन्हें बहुत परेशानी होती है उसे खाने के बाद। तो ऐसा कह सकते हैं आप, जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ का कारण भी बनता है ये। डन। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड पैराग्राफ। In the third paragraph, we will discuss about this part: suggestion, conclusion, effect on people. लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो कैंपेन चलाई गई, क्या सजेशन दिए गए और उसका निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन क्या निकला। People were suggested to use cotton and paper bags instead of plastic bag. लोगों को सजेस्ट किया गया कि जो लोग हैं वो कॉटन का बैग यूज करें, पेपर बैग यूज करें, प्लास्टिक के बैग की जगह। इंस्टेड ऑफ वर्ड लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, यानी कि प्लास्टिक की बजाय किसका यूज करें? कॉटन का और पेपर का बैग यूज करें। एवरीबडी एप्रिसिएटेड द कैंपेन, हर किसी ने इस कैंपेन की तारीफ की।
by which the people had been affected for long, जिसकी वजह से जो लोग थे उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। कैंपेनर्स वर लिसन्ड बाय मैन एंड वुमेन, कैंपेनर्स मतलब जो समझाने वाले लोग थे जिन्होंने कैंपेन चलाया था, उन्होंने आदमी और औरतों दोनों को समझाया, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। कमिंग आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर निकलकर। नाउ द लास्ट एंडिंग पार्ट, यहां पर आपको क्या समझाना है माय डियर बच्चों लास्ट पार्ट में? पर्पस और कंडीशन, पॉजिटिव रही है नेगेटिव, देखो अच्छी रही है बुरी, ये दोनों चीज बतानी है आपको, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया है। द पर्पस ऑफ कैंपेन सीम टू बिकम सक्सेसफुल एंड कंप्लीटेड फॉर विच इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जो उद्देश्य था कैंपेन का वो पूरा यानी कि सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहा है, पूरा होते दिखाई दे रहा है, फॉर विच जिसके लिए इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। पीपल टुक एन ऑथ, लोगों ने कसम भी खाई, नॉट टू यूज पॉलिथीन, कि वे पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे, एंड टोल्ड दैट इट वॉज अवेयरिंग एंड एजुकेटेड कैंपेन, और ये भी कहा लोगों ने कि जो ये कैंपेन है ये अवेयरिंग है यानी कि जागरूक करने वाला है, और एजुकेटेड कैंपेन है। एजुकेटेड या एजुकेटिंग, या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, एजुकेटिंग यू कैन राइट हियर माय डियर बच्चों, सही कर लेना भाई यहाँ पर, एजुकेटिंग, एडुकेटिंग भी बोल सकते हैं, यू नो वेरी वेल, we are related with two language, first is American, second is British, so you can just add here, according to the sentence, it was awareing and educating campaign, really it was a great success, और वास्तव में ये बहुत बड़ी सफलता थी। तो माय डियर बच्चों ये था वो पार्ट जिसे मैं पार्ट 5 कहता हूँ। thereafter there will be a little part, otherwise you can just do yourself taking example from the other side. Now by my side report writing is complete, it will come of 5 marks in board exam this year because of reducing the syllabus by CBSE because of coronavirus. So you need to take very attention towards report writing for getting 5 marks in your CBSE board exam. Okay my dear bachcho, so let's call it a day with the new video with your new part on campaign that will be a very little part according to you, according to me, and according to example. Okay my dear bachcho, have a good day. We will meet in the next video. Watch this video again and again to understand, and if you are unable to understand, you are getting some mistakes, you are getting some problems, so you can discuss with me on my WhatsApp number, or you can collect my WhatsApp number with the help of your group. Okay, and you can send me on WhatsApp on my new number 7451071007. Okay, have a good day my dear bachcho.